ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਜ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਆਪ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਰਮਤਾਂ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਦਿਵਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਇਆ। ਸੰਧਿਆ ਕੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਾਚਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਜਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਾਚ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੂਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਿਕ ਉਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਚਰਣੀ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਆਪ ਖੁਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਲੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਦਾ ਚਰਚਾ ਇਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨੂਰ ਹੈ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਨਵਾਬ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ 760 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇ ਚਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਯਾਰ ਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਰਾਮ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਵੀ ਨੇ।
पढ़े लिखे भी ने, दानिशमंद भी ने, तो सब तो वड्डी गल कि ईमानदार ने। नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे ने, वो सरकारों के खैर खवा भी कई बार होंगे, पर पूरी तरह ईमानदार नहीं होंगे। कहने लगे सारे के सारे गुण जयराम दे विच ने, तो जो जयराम कह दे वो न्याय की गल करेगा, क्योंकि एक पासे वो रिश्तेदारी है, दूजे पासे सरकार ते विच वो जमानती है। और जिस दिन हिसाब होया सी उस दिन भी जयराम उत्थे मौके ते सी, ते जो नानक जी ने वचन किया उहदा मौके के गवाह भी जयराम जी ने। इस करके जयराम नूं सद लो, जिवें जयराम कहे उदा पगली गल, क्योंकि रकम नानक दी ये सत है। वरतनी कित्थे है? नानक जी ने कहा है कि फकीरां च खैरायत दे दिओ, मैं रकम अपने घर नहीं ले जानी। नानक जी के सौहरा साहिब बाबा मूल चंद जी ने अपील की है कि इस रकम नूं नानक जी के बच्चों नूं दिओ, क्योंकि कमाई तो नानक जी की है ना। उन्होंने व्यापार करके मोदी की कार विहार किरत करदे मशक्कत करके कमाई की है, इससे पहला हक नानक के बच्चों का है। इतों गल अज आरंभ करते हैं। हुण उन्होंने सुन मन माने बैन भवन मानव पठा, गल नवाब के चित लगी। नवाब ने एक बंदा भेजिया जा भाई जयराम के घर, तो जयराम नूं बुला के लिया। लीनो निकट हकार बैठ गयो मन ठठा। जयराम जी आ गए, क्योंकि सरकारी दरबार कचहरी चो सुनेहा गया तो आना सी, पर जयराम जी पूरे खिड़े हुए नहीं गए, थोड़े जे उदास ने। उदास थोड़े जे इस करके भी हो सकते हैं कि हुण तक नानक जी ने जो किया भला 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 होया, पर रिश्तेदारी में थोड़ा जिहा खलल पै रहा सी। सौहरा साहिब जी ने आके नानक जी के बारे कुछ वध घट बोलिया भी, तो आ पैसे की भी अपील पा दी है। सब जानते हैं कि परिवारक मसला कचहरियों तक चला जाए तो थोड़ा बहुता मन में गिला जिहा बन जाता है भी ये गल्लां परिवार दीयां सीगियां, परिवार में रह जांदियां तो चंगा हुंदा, सरकारी कचहरियों च ना जांदियां। पर हर बंदे की सोच अपनी है। एक बेनती करा, साखियां पढ़द्या सुनद्या जिथे इतिहासक नुकते समझ आउंदे ने, उत्थे कुछ व्यवहार दी गल्लां भी सानूं इत्थों समझ आउंदियां ने। जिथे पहली गल कि परिवार के मसले परिवारां विच ही नजिठ ले जाण, सरकारी दरबारे कचहरियां च ना जाण ते चंगा है। दूजी गल समझ इत्थों आउंदी है कि जिहड़ा विचकार मुखी धुरा हुंदा उहनूं न्यूट्रल रहना बड़ा कठिन हो जाता, पर रहना चाहिए। किसी धिर की पक्ष पूरनी, क्योंकि आम परिवारों च यकदम ही धड़े बन जाते हैं, भावें लड़ाई नहीं है लेकिन फिर भी धड़े बन जाते हैं। पर मुखी किहदा पासा पूरे, इस करके मुखी नूं जो उस वक्त मौके ते मौजूद हुंदा उहनूं चाहिए कि न्यूट्रल रहे, भावें चुप कर रहे, समा आउण ते फिर उचित गल बोले। और ये बहुत सारी गल्लां सानूं हौली हौली साखियों जो समझ आउणगीਆਂ, और यही समझण वास्ते साखी नूं पढ़िया जाता है। नहीं तो इतिहास के नुकते तो मोटे मोटे सब नूं पता ही हुंदा है कि गुरु नानक पातशाह ने फलां समय आ कीता, मोटी मोटी गल्लां दा ते इतिहास जो पता हुंदा है। थोड़ा जिहा मन ढट्ठा है, थोड़ा जिहा मन उदास ने, आण बैठे कचहरी च, क्योंकि हुण कचहरी च परिवार दी गल्लां होणगीਆਂ, ते परिवार दी गल्लां कदे भी कचहरियां सरकारी दरबारे नहीं चाहिए। सियाणे सदा मनदे कि सरकारी दफ्तरां दे विच परिवारक मसले लैके नहीं जाना चाहिए। आनन भन ही खान जो नानक धन आहा। पठान भी सच्चा है, दौलत खां लोधी भी, क्योंकि वो को अमानत पई है। शायद होरना नवाबां वर्गा हुंदा तो कहंदा जब्त कर लो, जिहदा कोई वारिस ही नहीं बन रहा, जां हुण तक उन्हें 3 महीनों च वंड छड्डी हुंदी, खुरद बुरद भी कर दिंदा। पर यह भला पुरख है, ये ठीक है नवाबी कदे कदे दे परकट दी हुंदी है, और वो भी कचहरी मंडल तक। असीं इतिहास से हुण तक दे जिन्ने क नुकते पढ़े ने, उन्हां दे विचों अगर नवाब ने गुरु नानक पातशाह साहब जी दे नाल कदे तलख बोल बोले है तो सिर्फ कचहरी दे विच जो कानून हुंदा, जिवें अफसर अपने बॉस अपने मतहत नूं कोई शब्द कठोर बोलदा है,
वो भी थोड़े बेशक कठोर लफज बोले होणगे, पर नानक पातशाह साहब जी निजी शान दे, उन्होंने अकीदे दे, उन्होंने किरत विहार के खिलाफ नवाब खान ने कोई, दौलत खान ने कोई भी मंदा बोल नहीं बोलिया। ये मन में गुरु नानक पातशाह साहब के प्रति भाव है। कहने लगा जयराम जिहड़ा नानक दा धन पिया है की करिए उहदा, हो तिह की बिध क्या करह कहो जिह बिध लहा। क्योंकि तुहानूं पता है नानक जी ने की किया सी, तुसीं मौके ते गवाह मौके ते मौजूद हो, ते नाल ही नाल मौके ते मौजूद ही नहीं बल्कि सरकारी तरीके दे नाल परिवारक तरीके दे नाल नानक दे वड्डे रिश्तेदार हो ते उन्हां दे खैर खवा भी हो, और उन्हां दे पिता की गैर हाज़री में तुसीं हुण तक दे कार विहार भी निभाए ने। तुसीं वड्डे हो, खैर खवा हो, पढ़े लिखे हो, दियानतदार हो, ये दसो कि उहदा की करिए। रहत डरत अत चित नित सतगुरु ते। कहने लगा मेरे मन च ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि मैं उसनूं अपने घर वरतां, सरकारी दरबारे वरत ला। मेरे मन में तो नानक के प्रति अदब है, तो चूँकि अमानत है तो अमानत नूं वरतन लग्या बड़ी सावधानी तो जरूर सोच विचार चाहिए है। मेरे मन में एक भै रहिंदा है किते अमानत च खयानत ना हो जाए, किते किसी प्रवाह दे विच गलबात विच निकल के कोई गलत फैसला ना हो जाए, इस करके मेरे मन में एक भै रहिंदा है। इत्ते मूले ते डरत कठन दिश दुहूं ते एक दूजे पासे एक ये भी गल है कि जो सामने बजुर्ग जिन्हें अपील की है, ये भी कोई नानक के दुश्मन तो नहीं के, ये भी नानक के खैर खवा ने, परिवार का भला चाहते हैं, बच्चों के नाना जी ने और वडेरे बजुर्ग पिता के थां ते ने, ये भी भला लोड़ते हैं, मैं भी भला लोड़दा, मेरे मन च भाव है। तो असीं हाँ सारे नानक के खैर खवा, सारे नानक नूं प्यार करते हाँ, साड़ी किसी की भी नानक जी के नाल किसी प्रकार की कोई लाग डाट नहीं है। नानक जी का धन जमानत रूप च अमानत रूप साड़ी कचहरी च दर्ज है। हुण उहदे वंडण के मसले ने, नानक ने कहा होया कि गरीबां च वंड दिओ, तो उन्हें सौरा साहब कहते कि परिवार नूं दे दिओ, बच्चों का हक है। भाई जयराम जी भी चुप ने, कहण लगे यही गल नवाब साहब बिल्कुल इन बिन तुहाडे लई मेरी हालत है, तुसीं ते फिर भी बरी हो, तो मेरे तो दोनों पासे रिश्तेदार बैठे ने, मैं किनूं की जवाब देंगा, इस करके मैं कुछ फैसला नहीं ले सकता। हो बैठो तुशन ठान ना कछ विद लहत है। कहने लगे मैनू समझ नहीं आती कि मैं की करा, जे कहिंदे हाँ तो नानक जी का अपना वचन है कि वंड दिओ, ते इधर पिता जी आ जिहड़े उन्हां दे सौहरा साहब ने ये कहिंदे ने कि इधर घर दे दिओ, चुप है सानू मैनू सुझदा नहीं। खान बखानत बैन जराम क्यों ना कहे ना क्यों। खान दोबारा कहने लगे जराम तू कुछ दसदा नहीं, असीं तेरे ते छड्डी, तू जिवें कहेंगा उदां कर लांगे। यह बिद बद है बदन सुबिद धन तनह देओ। तुसीं जो कहोगे धन उधर दे देंगे, घर दिओ घर भेज देने आ, नानक जी के हथीं किते खैरायत वंडनी वो वंड देने आ। निज धन निज सदन न धरों धर्म नित होनो नहीं। देख मैं हुण बहुता समा ये अमानत नूं अपने घर नहीं रखना, क्योंकि 3 महीने अगे हो गए ने, फिर कोई होर मसला हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि यह बहुता समा जिहड़ा धन सरकारी खजाने च रहे, तो समय का भाई कोई पता नहीं हुंदा, इत्थे राजगद्दियां किहड़ियां अटल टिकियां होईयां ने। इस करके जिवें तुसीं करना करो, धन तुहाडा है, नानक दा है, जिथे कहोगे मैं उत्थे दे देंगा। हाँ यह है कि उन्हें मेरे को अमानत रूप जमा किया, इस करके मैं छड्डदा भी नहीं, पर जिथे तुसीं कहो सियाणे हो उत्थे दे देने आ। हाँ बूझन तुझको कीन समझ भनीए सही। तुसीं सोच विचार कर लो जयराम, सोच विचार कर जो सही तुहानूं लगदा मैनूं दस दिओ। सुनो खान जी कान जो निज मन ठानिया। जयराम कहने लगे खान जी मैं की कहा,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰੋ। ਤਸਬਿਤ ਕਰੀਏ ਦਰਬ ਆਪ ਬੁੱਧਵਾਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਉਹ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਸੰਦੇਹ ਦੇਣ ਕੋ ਧਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨਾ ਫੁਰੇ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਕਟ ਤੁਮਹਾਰ ਬੁੱਝ ਕਰ ਕਾਰਿਆ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਵਲਾਇਤ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਬੌਰਾਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਾਨ ਪੁਮਾ ਨਹੀਂ ਪੱਠ ਦਿਆ। ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਹੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਵਲੀ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਵਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਲਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਰਦਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਦਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਆਨ ਹਕਾਰ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਗਇਓ ਠਿਗ ਨਿਧ ਮਾਇਆ। ਨਿਧ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਧੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਵਾਂ ਰਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਰਾਜਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਥਾਨ ਮਸਾਨ ਨ ਮਾਨਵ ਕੋ ਜਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਮੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਕੰਮਾਂ ਰਾਜ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੋ ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਸ਼ ਤਾਪ ਤਰੈ ਸੁਖ ਮਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਾਪ ਮਿਟ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਮਿਟ ਗਏ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੌਜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਠ ਚਲੋ ਨਿਬਾਬ ਹਕਾਰੀ। ਇਹਨੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਬ ਜੀ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਨ ਕਛਕ ਤੁਮਹਿ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਹਾਉ ਨਾ ਚਲਾਉ ਧਿਗ ਖਾਨ ਕੌਣ ਮਮ ਕਾਜ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਬੈਸ ਰਹੇ ਉਦਿਆਨ ਨ ਮੋਦੀ ਸਾਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਪਾਬੰਦ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਣ। ਮੈਂ ਵਪਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਮੁਰਪ ਮਾਨੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ ਖਾਨ ਸੋ।
तो उन्हें वापस आके सेवादार ने उदा ही कह दिते, क्योंकि कई बार गल कहता कहता बंदा भी कई कुछ बदल जाता है। उन्हें आके खड़ी भाषा उदा ही कहती ने जी वो तो नहीं आते, उस नौकर ने को वध घट भी शब्द पा दिता हो। नहीं पावे पर पाए रहे उदयान सो, वो तो कहते मैं तो शहर आना नहीं, मैं तो उजाड़ जी रहना। उन्हें एक दो गल्लां अपने वालों भी होर पा दित्तियां। हो ज्यों भावे त्यों करो आप तुम सियानी है, तो सगों इन्हें चुकना के रूप थोड़ा जिहा कह दिता भी तुसीं नवाब साहब सियाणे हो, फिर तुसीं जे करना करो, जिवें कचहरी का काम होंदा तुसीं सद लो, मेरे सदन ते आया नहीं जे। सुनी खान निज कान रिसानो मन घरों, क्योंकि इस वक्त खान का एक कचहरियां वाला रोब सीगा, तो उदा सदे ते कोई आए ना तो वह हद तक समझी जाती होंगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने अफसरी अहुदे ते सवार है। मन च गुस्सा है कि स्नेहा भेजे आया क्यों नहीं। मशकरी साए समेर भगन चेह मन मनो, हुण इदां जिवें एक मच्छर गुस्सा करे कि मैं पहाड़ नूं मार तोड़ देना है। कहे कि आनो गहे कहे जे न आवे, कह लगे अच्छा जाओ हुण दो चार बंदे जाओ नाल सिपाही लै जाओ, तो जे ना आवे ना तो फड़ के ले आओ, कचहरी च पेश करो। जो नवाबां वाला प्रणानक होंदी है, जो नवाबी अफसरी है, हुण अफसरी ने कहने लगे पहलां तो कहो चलो, तो जे ना आओ तो सिपाही लै जाओ, फड़ के पेश करो। हो जाओ अब समझाओ बाहर पछतावई, जाके समझाओ मुड़ के कोई खलारा ना पै जाए, क्योंकि सरकारां दे काम ने और कचहरियां दे काम सब नूं पता कि जे कोई बुलावे तो जाना पैंदा, इस करके बाहर पछतावे की गल ना हो जाए, इस कर करो कि आपे आ जाए। देर ही नर फेर हेर कह जाए कह, तो सरकारी बंदे फिर तुर गए। सरकारी बंदे तो आर्डर मिले तो फिर 5-7 नाल सिपाही लाए। इस बार कोई एजिया नाल थोड़ा वड्डा अफसर गया, वो फिर चल गए जिथे गुरु नानक जी बैठे ने, फिर पहुँच गए। देर ही नर फेर हेर कह जाए कह, बेग चलो एक बेर दे हर खाए कह। जिहड़ा अफसर सी कहन लगा तुसीं आपे चलो, नानक जी देरी क्यों करते हो, गल तो जाके मुकनी है, और तुहाडे जाए तो बिना गल बननी कोई नहीं। एवें नवाब नूं गुस्सा आए, कोई कलेश पावे, नत रसे मन खान गहे मंगवाए कह। तो एवें तुहानूं पता अफसरां दा नक ते गुस्सा बैठा हुंदा, एवें मूँह कोई गल कह दित्ती, सानूं तो करनी पैनी भी असीं ते मुलाजम हाँ, असीं ते नौकर च हां, सानूं तो उहदा कहना मनना पैना, असीं आपनूं हत्थ नहीं लाउणा चाहते, तो उन्हें किते कहता फड़ के लियाओ तो साडे लई बड़ा औखा होना है। इस करके साडी बेनती कि तुसीं आप ही चलो। हो भली बात है आप चलो सुख पाए के, साडा भी भला तुहाडे परिवार च सुख रहे, सब दा भला यही है कि तुसीं चलो। करनी तो तुसां भी अपनी मर्जी, सानूं भी पता है मर्जी तो हुण तुहाडे ते किसी दी वरती नहीं जानी, पर क्यों ना एक बार जाके जो कलेश पिया मुका दिओ। सुन शुरन सुख राज सहज मुस्कात चले। महाराज ने सुनिया, उन्हें बेनती भाव च किया तो महाराज मुस्कुराए तो उठ के तुर पे। कह लगे चलो कोई गल नहीं, चलते भाई, जे साडे जानदे नाल मसले हल हो जाते तो आपां चलते हैं, असीं किहड़ा भी झगड़ा पा के को बैठे आ, पर साडा कोई काम उत्थे है नहीं। मंदमती मर मुड़ दे निहमत पहले, क्योंकि गुरु नानक पातशाह साहब जी का हर कदम किसी मंदमती नूं मत देण जाना हुंदा है। हुण इत्थों असीं पढ़ते ना, भाई गुरदास साहब कहंदे ने गुरु नानक पातशाह साहब ने कमर कसा कीता, चढ़िया सोधन धरत लुकाई, तो इत्थों ही गुरु नानक पातशाह साहब जी ने जगत के सुधार दी ये यात्रावां आरंभ कीतियां ने। हुण इंज कह सकते असीं, बाद असीं बेशक गाथां पढ़ते कि वड्डियां उदासी तैयारियां कीतियां ने, जगत के धर्म खेत्र च फसे हुए लोगों को पाखंड तो दूर करने वास्ते नानक पातशाह साहब जी की ये मसाणा तो चल के नगर शहर आबादियां कचहरियां तक इत्थों यात्रावां की उदासी की आरंभता होंदी है। महाराज मुस्कुराए तुर पे, कहने लगे चलो। इंज बेदी केत निकेत गए हेत है यही,
क्योंकि गुरु नानक पातशाह का हुण तो मतलब ये कि मत देनी है, कोई आ जाए तो उन्होंने भी मत देनी है, जो कोई अटकिया होए तो तक पहुँच भी जाना है। और ये अपनियां गुरु के गुरु जाने कि गुरु पातशाह सब च मुस्कराते हुए आप तुर पे ने। हो कलमल कलमल बल बलत उबारन तिस हई। क्योंकि असीं सारे मनते हैं, साडे वडेरे कहिंदे ने कि भाई कलयुग का प्रभाव वरत रहा है, हर थां कलमल हुई मेदनी, मेदनी पापा नाल भरी हुई धरती ते पुकार हो रही है। तो हौली हौली इलाज करना है ना, तो इलाज करने वास्ते गुरु नानक नूं चलना पैना, जाना पैना। गए ठंड तह भये कियो ना सलाम को। जाके महाराज पहुँचे, नालों 5-7 बंदे ने, दरवाजे में कचहरी सामने आ गए, नवाब बैठा है, होर 5-10 बंदे बैठे ने। भाईया जयराम जी तो गल करके उठ के घर आ गए कि तुसी जानो, तुहाडा काम जाने, शक है तो नानक नूं पुछ लो। नानक जी पहुँचे ने, कचहरी लगी है, महाराज ने कोई सलाम नहीं किया, क्योंकि हुण मुलाजम नहीं गया कि मुलाजमा वांग पहुँच के सलाम करनी होंदी सी। हुण महाराज चुपचाप जाके सावधान खलो गए। हेरत उर्स सरस खान मन बाम को। तो जदों ना महाराज ने नवाब दौलत खान नूं सलाम नहीं किया तो थोड़ा जिहा गुस्सा भी आया, पहले कल तो मेरा मुलाजम ही सी ना, क्योंकि हर बंदे की वेखण की नज़र अपनी है। और इहो ਜਿਹੇ जो अफसर होंदे ने, इन्हां दी जो बाहरली बनतर होंदी वो एक वक्खरी होंदी है। निज हर बंदे का सब जानते हैं कि एक वक्खरा होंदा है। तो जो बंदा अपने दफ्तर च हुंदा वो कहंदा नहीं जी मैनू तो दफ्तरी तरीके ने बुलाओ। अज भी असीं बहुत सारे लोगों मिलते गिलते हैं ना, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ तो शामिल होणगे, उन्होंने मित्र सज्जन ही जे अफसर तो की कहणगे भी बाहर तो सर किया करो, घर सच परिवार जिद्दां मर्जी बोलिया करो, पर दफ्तरां दे विच तुसीं एक रिस्पैक्ट ते गैप मेनटेन करके रखिया करो। और ये सदियों तो चलता है, प्रोटोकॉल सदियों तो बनता, ਉਹਦਾ दर्जा बदरजा बनया है। कचहरी में आके नानक जी ने सलाम नहीं किया, झुके नहीं, थोड़ा जिहा मन बाम होया, मन बाम के थोड़ा जिहा खिझिया जिहा। हाँ जो हकारे तोह न आयो क्या ठटी। कहन लगे की गल, पहला सद्या सो तां नहीं आए, मन च सोचा कि ये की विचार है तुहाडे मन च, क्योंकि किसी ने तुहानूं पहला सद्या तुसीं आए नहीं। हो मोर आए सिंह मोर बैठे हो लख लटी। नाले तो तुसां घर व्यार छड्डता ना कि लख लुट बन गए हो। लख लटी कहते हैं कि बहुत भी लखपति, लख जिहड़ा लखां खर्च कर सकता हो, जिन्हों पंजाब च लख लुट भी कहते हैं। भीने लख लुटो कि नवाब का मौके के हाकम का कहना भी नहीं मन रहे। आखिर तुहाडे मन च है की तुसां प्राप्त किया है। महाराज कहन लगे चाकर जबे तुम्हार आवते तुम कहे। नवाब साहब जदों तुहाडे चाकर सां, जदों तुहाडे मुलाजम सां, तुहाडे एक इशारे ते असीं आ जाते सां, तुहानूं बहुता कहण की लोड़ नहीं सी पैंदी, कचहरी च आम पेश हुंदे सां। तजीकृत अब सबे निरारे हो रहे। तुहानूं पता है असां तुहाडी चाकरी छड्डी, असीं किरत छड्डी, असीं तां परिवार तो वखरे होकर निरारे बिल्कुल कल्ले होकर बैठे हाँ। असीं उत्थे बैठे हाँ जिथे किसी राजे का हुक्म नहीं चलता। और ये बड़ा रहस्य है कि शमशान विच किसी का हुक्म नहीं हुंदा, क्योंकि शमशान का अपना नियम होंदा है। हुण तो फिर भी असीं कदे कारपोरेशन आदिक के नियम चलते हैं, नहीं तो शमशान एक ऐसी जगह होती है, याद रखना जो गल्लां कदे समझ सकीए। सतसंगत अते शमशान स्थान ये दो ऐसिया जगह होंदियां ने जिथे राजियां का हुक्म नहीं चलता, जिन्हां दे नियम अपने होंदे ने, जिथों का आउण का बैठण का रहण का नियम अलग ही है। शायद इसे करके अभ्यासी जन सतसंगत ते शमशान दी कुछ चीज़ां मिला देंदे ने। जे पुरानी गल्लां नूं समझण की कोशिश करिए, अगे जाके दूसरे पातशाह महाराज गुरु अंगद देव सिखां पुछया सी महाराज संगत विच किवें आईए, तो महाराज ने कहा जिवें शमशान विच लुक जाते हैं, मुर्दा कबर विच जाता है। हैरान हो के महाराज असी संगत विच आउण दी गल कीती, जिथे जीवन मिलता है, तुसीं शमशान ते कब्रस्तान की गल करती। महाराज कहने लगे वेख्या कब्रस्तान शमशान बंदा अपनी मर्जी ना जाता है, नहीं
किदां रहिंदा उत्थे, ਉਹਦੀ मर्जी हुंदी है। कहण लगे नहीं, जिवें मर्जी कबर 'ਚ लिटा दो, जिवें मर्जी मिट्टी पा दिओ, जिवें मर्जी लकड़ां उत्ते रख दिओ, कदे उन्हें कहा कि मेरे ते आ क्यों कीता, भी मैं तो नहाता धोता सा, मिट्टी क्यों पाई है, मेरे ते लकड़ां क्यों रखियां, जी मैनूं तो अग तो डर लगदा, मैनूं साड़न क्यों लगे। कहण लगे महाराज तो मर चुका हुंदा है। कहण लगे इसे तरह संगत दे विच भी मर्जी नहीं चलदी। संगत विच जो गुरु का हुक्म वरतदा है, उत्थे कुदरत का हुक्म वो नियम वरता है कि शरीर नूं मिटाना हुंदा है, इत्थे मन नूं मिटाना हुंदा है। बस इन्ना ही फर्क है। उत्थे शरीर मिटाए जाते हैं, इत्थे मन मिटाए जाते हैं। शायद इसे करके गुरु नानक पातशाह साहब जी ने पहला पड़ाव मसान च कटिया, जिथे मन मिटते तन मिटते। कहने कि असीं ते निरारे होके बैठे हाँ, चाकर पए खुदाए हुक्म ते मान आई। तो तुहानूं पता ना आप सब, मसाना दे उत्ते किसी का राज नहीं हुंदा। जदों राज करदियां वरतदियां ना, उदों ही मसाना नूं कोई नुकसान नहीं हुंदा। नगर शहर पिंड आबाद लुटे जाते हैं, पर मसान नूं किसी ने की लुटना है। उत्थे की है कब्रिस्तान शमशान, उत्थे की लुटोगे, उत्थे कोई ना लुटेरा जांदा राजा जांदा तो कोई नहीं जांदा, उत्थे खुदा हुंदा है। असीं खुदा दे चाकर हो गए हैं। अगे जाके बड़ा प्यारा बचन सी, कदे कदे पानी च पढ़े, हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा भारा। जद तक असीं तुहाडे चाकर सां, तुहाडे कोल आउंदे सां, पर हुण असीं निरारे हो गए हाँ, हुण खुदा दे चाकर हाँ। हो निरंकार करतार जगत जिह जान आई। वो खुदा नूं ही कोई निरंकार कहिंदा, कोई करतार कहिंदा। असीं निरंकार करतार कहने हैं, तुसीं खुदा कहिंदे हो, असीं उहदे चाकर हाँ। शोन सुन त्रिस सरसन बस अस कहत पा। मन च वट जाए तो है नवाब दे, पर अगों बोलदा कुछ नहीं, चुप कर रहा। थोड़ा जा ठरमे जे दे नाल नवाब ने कोई गल कही, आम बस आनो दीन मझार दीन मत चहत भा। उहदे नाल जो एक राजियां दे मन विच गल चलदी हुंदी सी, और सदी भी काल तो रही है। असीं तो केवल औरंगजेब के नाम लै लेने ना, और ये औरंगजेब तो बहुत पहला तो चलती सी। धर्म दे विच बदल दिओ, जदों कोई जरखेज बुद्धि का बंदा मिले, कोई सियाणा चतुर मिले, इंज करो इन्हूं सलाम दाखिल कर लो। और बहुत सारे मौलवी मुलाणे ये काम राजे नवाबां नूं चुकना देंदे रहिंदे सन। उत्थे भी ख्याल चलिया भी इन्ना बंदा काबिल है, पढ़िया लिखिया भी है और निर्भय है, क्यों ना इसनूं किसी ढंग नाल इस्लाम का रंग लग जाए तो फिर साडी वाहवा ते नाले काम ते घर बार ते छड्ड ही बैठे। तो कहण लगा, अच्छा तुसीं कहंदे हो खुदा दे चाकर हो गए हो, तुसीं कहंदे हो करतार सत करतार निरंकार इक्को ही है। महाराज कहण लगे हाँ। कहण लगे फिर साडे नाल काम करो, आज जुमे को रोज़ खोज सब पाए हो। अज तो जुम्मा है, तो जुम्मे के दिन खुदा की बंदगी करने तो बड़ा शुभ स्वभाव होंदा ना। हाँ चल हे संग मसीतन माए भजाए हो, इदा करते हैं नाल है चलीए, तो चलो चलते हैं नमाज पढ़ते हैं। करतार खुदा तुहाडा एक ही है ना, कोई भुलेखा तो है नहीं, क्योंकि उसने वो रुपये वाला मसला तो रह गया धरिया, तो मन दूजे पासे कचहरी कदों किहड़े पासे नवाब अफसर लोग गल लैके तुर पैण कि पता नहीं लगता। कह लगे कोई गल नहीं, पैसे तो बाद लै देंगे दे देंगे, पहला आ काम कर लीए। तुहाडी नाल एक हिसाब दे नाल गुरु नानक पातशाह दे जो बचन सन, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, उहदी परख भी सी भी देखदे की कहिंदे आ। दृष्ट एक तर धरी जगत तज कान को। क्योंकि तुहाडे ख्याल सानूं सुने ने भी कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं, तुसीं हुण कहंदे हो रब दे खुदा दे चाकर हो गए हाँ, सारिਆਂ दा तुसीं परवाह नहीं करदे, ਧੀਆਂ पुत्र भैन भरा जिहड़े जांदे ने किसी की परवाह नहीं करते, तुहाडे सहुरे ने तुहाडे ते अपील की परवाह नहीं करते, बच्चे तुहाडे छोटे नूं तुसीं परवाह नहीं करते। ये किसी की परवाह ही नहीं करते, तुसीं बेपरवाह हो गए हो कि लापरवाह हो गए हो। याद रखना, धार्मिक व्यक्ति लापरवाहियां ते बेपरवाहियां दे फर्क समझ लांदा है। वो लापरवाहियां नहीं करता। गुरु नानक जी लापरवाह नहीं होए,
गुरु नानक जी बेपरवाह हो गए ने। लापरवाहियां होंदियां ते घर परिवार दी गल्लां ना सुणदे ना करदे। गुरु नानक नूं परवाह ना ही किसे केरी। अज बचन कदे कदे आपां कीर्तन सुणदे वडेरियां तो, हुण परवाह नहीं किसे दी, अपनी मौज विच अपने रंग विच। हुण उत्थे चर्चा चल पई, चलो बंदगी करते हैं तो खुदा दी करते हैं। हिंदू तुर्क जे दोए ना भेद है जान को, तो तुसीं तो कहते हो कि ना हिंदू है ना मुसलमान, भेद ही कोई नहीं इन्हां विच। तो हम करें खुदाए बंदगी बंद कर, बई असीं तो खुदा दी बंदगी करते हैं, असीं तो मुसलमान मानते हैं अपने आप, तो खुदा दी बंदगी हथ जोड़ कर जिवें असीं नमाज पढ़ते हैं। तो हो तुम भी गमनो संग तजो निरलाज डर, तो फिर इंज करो, अज भी गल मुक जाए। जे तुसीं कहंदे हो कि असीं किसी का भय नहीं करते, असीं खुदा दे चाकर हो गए हैं, तो चलो नमाजे पढ़ते हैं, तुसीं सर नमाज पढ़ो। लोक लाज समाज का डर अज पता लग जाएगा, कहंदे ही हो कि करते भी हो। सुन नानक जी कान बैन आनन भने, अगों सतगुरु हस पे, कहने लगे किहड़ी वड्डी गल है। खुदा तो हर थां ते व्यापक है, परमात्मा तो हर थां सत है, करतार है, निरंकार है। इंज करते हैं, चलो खान ते थान जहाँ तुम मन बने, चलो तुहाडी मर्जी जिथे खुदा दी बंदगी करनी, खुदा दी बंदगी वास्ते जिथे चलो उत्थे आपे चलते हैं। सिद्धा अपनी याद होएगा जो गुरु नानक पातशाह साहब जी ने बचपन तो थोड़ा जिहा उके आके किशोर अवस्था के जिन्होंने अजकल अपन टीन एज कहने आ, एक बार चुप कर गए सन। तो उदों भी एक गुरु नानक पातशाह साहब के विद्यक उस्ताद मौलवी कुतुबुद्दीन आए सन। महाराज ने उदों चुप कर धार ली सी, बोल नहीं सी रहे। वो कोल आके बह गए, उन्होंने बड़ियां गल्लां अपने वालों प्यार दियां ज्ञान दियां उलामे दी भी कीतियां। आखिर ते कहने लगे, नानक देख तेरी माता उदास है, माता करके बोल। गुरु नानक जी नहीं बोले। कहने लगे, देख तेरे पिता परेशान हो रहे ने, तुहाडी तबीयत खराब लगती है, तुसीं बोलदे नहीं, बोलो पिता माता करके बोलो, देखो मेरे करके बोलो। नहीं बोले। आखिर ते कहन लगे, नानक खुदा वास्ते बोल तो सही। जो कहने खुदा वास्ते बोल, तो नानक जुट के बह गए। कहने लगे, मौलवी साहब की पूछना जी। मौलवी साहब कहने लगे, मैं हुण पूछना ही कुछ नहीं, क्योंकि पूछण दसन तो गल अगे चली गई। हुण गल मेरे वास्ते तो तुसीं उठे नहीं, परिवार वास्ते तुसीं उठे नहीं, खुदा वास्ते उठे हो, तो खुदा वास्ते बोलते क्यों नहीं हो? हुण दसो ना, बोलो हुण सी बोलो। फिर उत्थे महाराज ने बचन किया सी, या कर्ज गुप्तम पेश तो दरगोश कुन करतार। आपने बहुत बार तलंग राग का पहला शब्द पढ़िया होना, हक्का कबीर करीम तू बे परवतिगार। उदों महाराज ने किस दुनिया मुकामे फानी। अज भी कहने लगे, खुदा वास्ते चलो जिथे चलना, खुदा दे नां ते जिथे भी चलो नानक जी तैयार ने, क्योंकि नानक तो है ही खुदावंद, नानक तो है ही खुदा दे प्यारे। असीं कहिए नानक तो है ही साडा खुदा, साडे वास्ते रब रूप ने। कहने लगे, चलो नवाबस जिथे तुहाडा चित करदा है उत्थे चलते हैं। खोजो खोजन जोग, जोग ना जानियो जाए है। नवाब साहब वो लभ्या नहीं लभदा, फिर भी खोजना जाना तो चलो। वो किसी वक्रे थावां ते नहीं है भी उत्थे खोजन जावांगे उत्थे मिल जाएगा, वो है उन्हें तो मनना होंदा है। और ये पहला उपदेश गुरु नानक पातशाह जी ने खुले पंचायतां दिता भी रब नूं तलाश करनी किते जाण की लोड़ नहीं है, पर फिर भी जे तुसीं थां मंनदे तो चलो, असीं चलण लई तैयार हाँ, क्योंकि साडी नज़र विच रब वास्ते कोई फर्क भिन्न भेद है ही नहीं। हाँ आनंद कंद मुकंद चले संगराए है। इस तरह नानक सतगुरु पातशाह साहब जी राय राजा जी के नवाब दौलत खां दे नाल वो रुपइया वाला मसला तो धरिया रह गया, उत्थे तो बाद हल होएगा। विच मसले दे विच मसला आ गया भी चलो खुदा की बंदगी करते हैं, तो गुरु नानक पातशाह साहब जी उहदे नाल बंदगी करने तैयार हो गए। रौरपुरी पुर माहे नर नर सगर में। गुरु नानक पातशाह साहब ने कचहरी च हामी भर ली भी चलो जिथे को आप बंदगी करते हैं। तो कचहरियां दी गल्लां बड़ी छेती उड्डदी आउंदियां ने। ये रौला पै गया आले दुआले पिले, नानक तो मन गए, नानक तो मुसलमान बन जाएंगे, नानक तो नमाज पढ़नगे, नानक मसीते जाणगे। जिन्ने मुँह उन्नियां गल्लां घर घर करत विचार कुलाहल नगर में। हर घर घर चर्चा होने लग पिया, थां थां ते गल्लां करन लग पे।
क्योंकि जो संध्या की नमाज है अज पढ़ी जानी है तो नानक ने मसीह ते जाके पढ़नी है। गुरुदेव कृपा कर साखी समय मुताबक अच्छे रुकते हैं। अगे फिर चल बेनती करें, कल दशमेश पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ज्योति ज्योत पुरब है। इस करके कल दे शाम के दीवान पातशाह दशमेश साहब जी के ही ज्योति ज्योत समावन की साखी नूं पढ़न सुनन ते विचारन का साखी दर्शन जो सिक्की नहीं कदे कदे ध्यान दर्शन भी कहने आ वो प्राप्त करने यतन करांगे। ये साखी फिर अगले दिन ते जाके 10 तरीक तो इत्थों अगे चलांगे कि नानक सतगुरु जी मसीत वास्ते तुरते ने, घर घर चर्चा हो जाती है तो की कुछ होंदा की वापरदा मोटा मोटा तो सानूं पता है, पर विच निक्के निक्के स्टैप जिहड़े हुंदे ने जो भावपूर्वक होंदे ने वो समझण की कोशिश करांगे। कुल चुक दी खिमा आसीस ते प्यार दिंदे फतेह बुलावना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।